Resilience Law Academy. 142 Capital नहीं ओनली 142 cognizance of plans. क्लॉज 2 एक ही कहता दिस टॉक्स अबाउट व्हाट It's sir ਉਹ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਪੜਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਅਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਅਰ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੂਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੈੱਕ ਹੋਊਗਾ ਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਦਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ otherwise ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਅਰ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ Explanation ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ 4 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ 16 ਡਿਜਿਟ ਕਰਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਪੀਐਨਬੀ ਹੈਬੋਵਾਲ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਪੀਐਨਬੀ ਡੁਗਰੀ 'ਚ ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀ ਡੁਗਰੀ 'ਚ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਪੀਐਨਬੀ ਹੈਬੋਵਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲੀ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਅਕਾਊਂਟ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਦਰ ਕੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਊਗਾ ਮੇਰੀ ਓਰੀਜਨਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜੋ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ Explanation. For the purpose of clause A, where a check is delivered for collection at any branch of the bank of the payee or holder in due course. ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਗਾ ਆਈ ਐਮ ਪੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਸੀਗਾ ਪੀਐਨਬੀ ਹੈਬੋਵਾਲ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਤਾ ਪੀਐਨਬੀ ਡੁਗਰੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਦੈਨ Then the check shall be deemed to have been delivered to the branch of the bank in which the payee or holder in due course, as the case may be, maintains the account. ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਓਰੀਜਨਲੀ ਆਪਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਲਗਾਇਆ ਠੀਕ 142 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੰਸਰਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਓਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ 142 ਕਲੋਜ਼ 2 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਾਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਹੈ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਔਰ ਦੇਖੋ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੈਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ 142 2 ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਚ ਪੇ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਉੱਥੇ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਅਰ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਡਰਾਅਰ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ 2015 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਫੁੱਟਨੋਟ ਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਪਾ ਕੇ ਇਨਸਰਟਡ ਬਾय ਐਕਟ 26 ਆਫ 2015 ਇਹ 2015 ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੈਅ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਚ ਪੇ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚ ਹੋਏਗੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਚ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਚ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 2015 ਚ ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ 142 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ 178 ਕਲੋਜ਼ 4 ਕਿਹਦਾ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕੇ ਭਾਸਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਦੇਣਾ
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨॉट ਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ। ਓਵਰਰਾइड, ਓਵਰਰਾइड मतलब ਕੀ ਓਵਰਰਾइड ਕਰੂਗਾ, ਆ ਓਵਰਰਾइड ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਸ ਐਂਡ ਦਿਸ, ਹਰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ और के भास्करन वाली जजमेंट ਨੂੰ, ਨਾ 178(4) ਨੂੰ। ਰਾਦਰ ਫੋਲੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ऐसा कह रहा है ए सैक्शन कि तुसी इनू फॉलो करोगे। और इस तरह समझो कि ये 2015 च नहीं, ये हमेशा तो एग्जिस्ट करता सी। हुण क्लियर होएगा? मैं फिर रिपीट करदा, ध्यान नाल सुनना। पहले आपां की फॉलो करते सीगे, जूरिसडिक्शन कित्थों तय करते सी, 178(4) ऑफ CRPC। फिर आपां के भास्करन भी पढ़ी, के भास्करन ने क्या, यही जजमेंट ਨੂੰ फॉलो मतलब यही सैक्शन ਨੂੰ फॉलो करो, ਇੱਥੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਰ ਪਲੇਸ ਦਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਚੈੱਕ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਅੰਬਾਲਾ, ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਮੈਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, डिसऑनर हो गया दिल्ली तो, सारी जगह तो जूरिसडिक्शन बन जाएगा। ये गल के भास्करन ने कही कि इनू तुसीं फॉलो करो। इस तो बाद आ गया हरमन इलैक्ट्रॉनिक्स। हरमन इलैक्ट्रॉनिक्स ने की किया कि इनू नहीं फॉलो करना, रादर तुसी कॉज ऑफ एक्शन फॉलो करो जिथे मेन ट्रांसैक्शन हुई है। मान लो दिल्ली का बंदा चंडीगढ़ जाके शॉपिंग कर रहा, उत्थे चंडीगढ़ के उन्हें चैक कट के दिता, चंडीगढ़ शोरूम वाले बंदे ने अपने चंडीगढ़ वाले बैंक के ही चैक लगाया, उत्थों ही डिसऑनर होया, उत्थों ही नोटिस भी भेजा गया, तो सारी ट्रांसैक्शन कित्थे दी बनी, चंडीगढ़ की बनी। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि तुसी दिल्ली की भी बना सकते हो, क्योंकि जिहड़ा चैक कट्टण वाला बंदा सी, ड्रॉअर सीगा, उहदा दिल्ली दे विच भी तां कोई अकाउंट सीगा। ते कॉज ऑफ एक्शन का मतलब होंदा है जिहड़ी तुहानूं ऐसे फैक्ट्स जिहदे बेसिस दे उत्ते तुसी सूट फाइल कर सकते हो, वो जिथे जिथे भी अराइज हो रहे हैं। हुण चैक कट्टण वाले का अकाउंट कित्थे, दिल्ली च, उत्थे भी अराइज हो रहा। चंडीगढ़ च उन्हें बैंक, चंडीगढ़ के बैंक के विच पेई ने जो है अपना चैक लगाया, उत्थे भी अराइज हो रहा कॉज ऑफ एक्शन। डिसऑनर भी उत्थे होया, नोटिस भी उत्थों भेजा गया। तो हरमन इलैक्ट्रॉनिक्स ने कहा कि दिल्ली एंड चंडीगढ़ दोनों कोर्ट्स की जूरिसडिक्शन बनेगी। इस तो बाद आपां ए फॉलो किया, बट इत्थे तक समझ आया। 142 कैपिटल ए की कहता है, नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विथ स्टैंडिंग का की मतलब होंदा है, ओवर राइडिंग द अबव। अबव मीनस आ सारी गल्लां, ऑल दीज थिंग्स, ए सारी गल्लां नूं ओवरराइड करते हुए कित्थे लगूगा चैक बाउंस का केस, 142 सबसैक्शन 2 दे अंदर। और इस तरह समझो कि 142 सबसैक्शन 2 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आया सी, आया तो 2015 च सीगा, लेकिन वो कह रहे 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं आया सी, रादर यह हमेशा तो एग्जिस्ट करता रहा एट ऑल टाइम्स। 2015 तो पहला भी एग्जिस्ट करता सी, 2015 तो बाद भी एग्जिस्ट करता सी। यह गल मैनू आ कह रहा सैक्शन 142 कैपिटल ए दा सबसैक्शन 1 कि इन्हां नूं नहीं, आपां किसी नूं नहीं फॉलो करना। फॉलो किनू करना, 142(2) नूं, क्योंकि इत्थे जूरिसडिक्शन तय हो रही है। ये कह रहा है, एक सैक्शन कह रहा है कि ओवरराइडिंग करते हुए, नॉट विथ स्टैंडिंग है, नॉट विथ स्टैंडिंग तो स्टार्ट हो रहा है, तो नॉट विथ स्टैंडिंग किनू ओवरराइड करना है, यह सारी गल्लां नूं ओवरराइड करना। आपां इन्हां नूं फॉलो नहीं करना, रादर फॉलो किनू करना है, इनू। बट ये तो आया 2015 च, उन्होंने कह रहे 2015 ना समझो, ऐ समझो कि हमेशा तो एग्जिस्ट करता सीगा, इट वॉज एग्जिस्टिंग एट ऑल मटीरियल टाइम्स। हुण पढ़ो 142 कैपिटल ए जरा, राइट। 142 capital A. Yes. Validation for transfer of pending cases. Subsection 1. Notwithstanding. देखो मार्जिनल हेडिंग ही कह रही है, वैलिडेशन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस। ए 142(2) था आया 2015 च, तो 2015 तो भी तो चैक, 2015 तो पहला भी तो चैक बाउंस से केस फाइल होए होने, तो वो कित्थे जाणगे। अगर अकाउंट पे चेक है तो 142(2) दे फर्स्ट प्रोवाइजो च, ए वाले पार्ट च, और अगर अदरवाइज चेक है तो बी वाले पार्ट च। ठीक है,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲੀਡੇਟ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਕੌਣ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ 142 ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਹੈਡਿੰਗ ਦਾ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੂੰ ਆਫ ਦ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਿਸ 2015 ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਪੇਈ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਕੋਰਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਚੈੱਕ 'ਚ ਡਰਾਅਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਦੋਸ ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿਤਾ 482 ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਸਰਵ ਹੋਇਆ ਨੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਹੈ 2013 12 11 10 ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ 142 2 'ਚ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਪਰਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਦੇ ਹੋਏ ਬਣੇਗੀ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ 178 4 ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਕੇ ਭਾਸਕਰਨ ਹਰਮਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਰਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ 142 2 ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ 2000 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ 2015 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੋਟਵਿਥਸਟੈਂਡਿੰਗ anything contained in the case code of criminal procedure 1973 ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਕਿ 178 4 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਲਿਖਤਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ 178 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 198 4 198 plus 4 ठीक है और any judgment decree स्टॉप जजमेंट के भास्कर वाली जजमेंट सी हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट सी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਨਾਟ ਵਿਦ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜਜਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਂ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨੂੰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ decree order or direction of any court all cases transferred to the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by the negotiable instrument amendment ordinance 2015 आगे गल 2015 तो आया है 142 2 लिखा ना court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 मतलब 142 subsection 2 shall be deemed to have been transferred under this act as if that subsection had been in force at all material times तो मतलब है पहला तो भी सी ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇਹ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਹੈਡਿੰਗ ਪਾਵਰ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਆਇਆ It is section 142 subsection 2 section 142 subsection 2 that would provide for jurisdiction clause or the place of trial for adjournment for dishonor place of trial for dishonor full stop section 142 subsection 2 has been subject to an amendment in the year 2015 but there is a very long history before this amendment ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਅੱਗੇ
ਇਹ ਥੋੜੀ ਲੰਬੀ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ क्योंकि ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ के भास्करन हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स अदालत प्रसाद दिल्ली हाई कोर्ट वाला ऑर्डर दशरथ रूप सिंह राठौर सारा लिखना। ये MP जुडिशरी च, UP जुडिशरी च और राजस्थान जुडिशरी च हर साल ही पूछा जाता है क्वेश्चन। पैरा चेंज करके लिखो। इट ऑल स्टार्टेड विद द अडॉप्शन ऑफ सेक्शन 177 and 178, सेक्शन 177 and 178 of CRPC, ब्रैकेट च लिखो 197 and 198 BNSS, 197 and 198 BNSS as regards the trial or jurisdiction। BNSS पर ब्रैकेट क्लोज कर दियो। as regards the trial and jurisdiction of the case की लिखवाया as regards the trial of jurisdiction or jurisdiction, trial or jurisdiction of the case, full stop। to be very specific, section 178 clause 4 of CRPC provided that if an offence constitutes or is made up of different acts or is made up of different acts, and each act if has been committed at different places, then every such place would have the jurisdiction, or the power to try the case। full stop। this was accepted and clarified in the case of K Bhaskaran versus Sankaran Vaidyan Balan, 1999 Supreme Court। K Bhaskaran versus Sankaran Vaidyan Balan, 1999 Supreme Court, that if any of the ingredients of dishonor of check are committed at different localities, then all the courts having jurisdiction in all these localities would have the territorial jurisdiction, para change। the adoption of such a flexible rule, ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਰੇ ਥੋੜਾ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕਰੀਦਾ। the adoption of such a flexible rule resulted in the concept called as forum shopping
whereby the jurisdiction were made whereby the jurisdiction were made just by sending a notice just by sending a notice, full stop. For example, suppose a transaction of loan along with the check bounce happens in the state of Punjab, but since the notice was sent from Delhi, it would give jurisdiction to Delhi. Full stop. Para change. Thereafter in the case of Harman Electronics versus National Panasonic, 2009 Supreme Court, Supreme Court again clarified that if the entire transaction were at a particular place, and the notice is from other place, it would not give jurisdiction. Full stop. Supreme Court followed the concept of cause of action. In CPC and held that it can be relied on in CRPC also. In this case, the check was delivered at Chandigarh. Bounced at Chandigarh, memo was also from Chandigarh. But the notice was from Delhi. Full stop. After this judgment, the concept of jurisdiction changed. Drastically. तो ही पहला आप केस भास्करन फॉलो करते सी, हुण आप हरमन इलेक्ट्रॉनिक्स फॉलो करन लग गए. And now the courts were not following K. Bhaskaran. But the judgment of Harman Electronics was practically effected for future cases, but not for earlier cases. Full stop. For the filing of earlier cases,
what should be the approach? Question mark पाके, it should be K Bhaskaran only. It should be K Bhaskaran only. Because it is a criminal law. Because it is a criminal law. And power under Order 7 Rule 10 CPC. And power under Order 7 Rule 10 CPC cannot be invoked. Cannot be invoked. Nor the power of review, nor the power of review under CRPC is possible. Full stop. This dictum was laid in the case of Adalat Prasad versus Rooplal Jindal. Adalat Prasad versus Rooplal Jindal, 2004 Supreme Court. ठीक है, full stop. Para change. Taking cognizance of this judgment. Taking cognizance of this judgment, the Delhi High Court by using the power under section 482 CRPC and Article 227 of Constitution directed all the magistrates to return the complaints directed all the magistrates to return the complaints as per Harman Electronics. और ब्रैकेट में लिखो दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी. वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, 2009 दिल्ली हाई कोर्ट. दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली ब्रैकेट्स 2009 दिल्ली हाई कोर्ट. फुल स्टॉप. This judgment was challenged in Vinay Kumar Shailendra versus Delhi High Court Legal Service Authority, 2014 Supreme Court. This judgment was challenged in Vinay Kumar Shailendra versus Delhi High Court Legal Service Authority, 2014 Supreme Court. ये विनय कुमार शैलेंद्र 2014 च दिल्ली दे विच एडीजे सी. ठीक है, फुल स्टॉप. इन दिस केस बिफोर एनी ऑर्डर्स कैन बी पास्ड. नाल ही लिखो, नाल ही लिख दे जाओ, है डिक्टेशन थोड़ी जी. In this case, before any orders can be passed, for withdrawal, as per Harman Electronics, there came a landmark judgment of Supreme Court. हाइफन पाके लिखो दशरथ रूप सिंह राठौर
Dashrath Roop Singh Rathore versus State of Maharashtra. 2014 Supreme Court 3-judge bench decision. Full stop. In this case, court redrafted the concept of jurisdiction. In this case, court redrafted the concept of jurisdiction and followed the cause of action concept. And followed the cause of action concept in CRPC also. Full stop. But the problem is Supreme Court gave a different interpretation. Supreme Court gave a different interpretation as to what is cause of action. As to what is cause of action. Full stop. According to Supreme Court, if a check is from Delhi, according to Supreme Court, if a check is from Delhi and dishonored at Chandigarh, it is the Delhi court that would have jurisdiction. It is the Delhi court which would have the jurisdiction. Full stop. The reason being that the banks at Chandigarh would inquire from the banks at Delhi, whether there are funds or not in the account. Whether there are funds or not in the account, and in case there is a no reply, no single inverted commas, in case there is a no reply, then the no is coming from Delhi, full stop. Hence Delhi court would have jurisdiction. Para change. This created more problems. And was not welcomed by business community. Full stop. Hence an ordinance was brought. Ordinance करण कौन बनांदा है? President. Hence an ordinance was brought and ultimately an amendment was done. Wherein now the jurisdiction shall be based upon the nature of the check. Which can be bifurcated as account pay check, and otherwise than through account check. Full stop. ठीक. So that was a big dictation, है ना?
ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, दसो जूरिसडिक्शन कितने लाई करेगी। चैक इशू होंदा लखनऊ तो, प्रेजेंटेड होया दिल्ली च, मतलब किसी ए परसन ने लखनऊ तो चैक इशू करके बी परसन को दिता, बी ने दिल्ली के विच जाके वो प्रेजेंट करता। नोटिस गया चेन्नई तो, कंप्लेनेंट खुद जिन्हें चैक लगाया वो रहने वाला मुंबई का। ये चैक की नेचर की है, अदरवाइज दैन थ्रू अकाउंट चैक, अकाउंट पे नहीं है, दूसरा वाला चैक है। जूरिसडिक्शन केड़ी प्लेसिस बनेगी, लखनऊ च, दिल्ली च, चेन्नई च कि मुंबई च? क्यों? इत्थे जूरिसडिक्शन बनती है अकाउंट पे चैक च, अदरवाइज दैन अकाउंट पे चैक च इत्थे बनती जूरिसडिक्शन। पे दे अकाउंट च बनेगी। चैक इशू होंदा लखनऊ तो, मतलब मान लो कोई ए परसन है, उन्हें चैक कट के लखनऊ तो दिता बी नू, बी जिहड़ा है रहने वाला मुंबई का, लिखा ना रिजाइडिंग एट मुंबई, लेकिन उन्हें लगाया चैक कितने, मान लो दिल्ली च कोई बैंक होएगा, ब्रांच होएगी, दिल्ली च लगाया, नोटिस गया चेन्नई तो, कहाँ पर बनेगी जूरिसडिक्शन? और चेक केड़ा अदरवाइज दैन थ्रू अकाउंट है, अदरवाइज दैन थ्रू अकाउंट च कितने बनती है जूरिसडिक्शन? तो ड्रॉर का अकाउंट कितने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप बताइएगा प्लीज, आंसर दो मैंने। लखनऊ तो इशू है सर, लखनऊ से बन रही है। करेक्ट, लखनऊ तो। ड्रॉर बैंक, ड्रॉर का होना, कट्टन वाला, ड्रॉर लाइक होता है। फॉलो करके इस तरह आने प्री च क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखो, उन्हें मैं नहीं दसना है, तुम दसोगे, क्योंकि मैंने आप नहीं आता, ठीक है। हाँ जी, एक अकाउंट पे चेक है, ठीक, इशू होंदा है मुंबई तो, प्रेजेंट होंदा लुधियाना च, बाउंस होया लुधियाना च, कॉन्ट्रैक्ट होंदा पार्टीज का, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टीज लखनऊ च, और कॉन्ट्रैक्ट दे विच कुछ गुड्स सीगे, गुड्स टू बी डिलीवर्ड, जिथे डिलीवर होने सी वो होने सी कोलकाता च, ठीक है। जूरिसडिक्शन कितने बनेगी हुण एच आइडेंटिफाई करके दसो तुहाडे काम की चीज़ केड़ी है, और बाकी वो कन्फ्यूज करने लिए जिहड़ा मैं क्वेश्चन पाया तुहानूं। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ RJS 2015। मैंने सर चेक देखना, मैंने चेक कितने बाउंस है। आंसर दो मैनूं।
ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਬਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, कॉन्ट्रैक्ट होया पार्टी से लखनऊ च, और कॉन्ट्रैक्ट्स के विच लेट सपोज कि ए और बी सी, ए ने बी नू 5000 रुपए दिते और बी ने ए नू कुछ गुड्स डिलीवर करने से, और गुड्स उन्हें डिलीवर करने से कलकत्ता च। जुरिस्डिक्शन कितने बनेगी? अगर आपने आंसर दे दिया मैं मान लूँगा आप आरजेएस के लिए ठीक हो। अकाउंट पे चेक है, अकाउंट पे चेक रूल की होंगे अकाउंट पे चेक च जुरिस्डिक्शन कितने बनती है? पेई दे बैंक च। पेई दा बैंक कितने है? जिथे प्रेजेंट होया, तो प्रेजेंट कितने होया? आंसर क्या है? केड़ा क्लॉज है, केड़ा सेक्शन है, प्रोविजन की है? पूरा बोलो। सेक्शन 42 142 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। ठीक, गुड। और ਉਹਦਾ रूल की कहता अकाउंट पे चेक च कितने बनेगी जुरिस्डिक्शन? पे दा अकाउंट होएगा। फॉलो कर गए? अकाउंट पे चेक च कितने बनती है और अदरवाइज एंड तो अकाउंट पे चेक च कितने बनती है? ड्रॉर च। ठीक है। एक तो मैं क्वेश्चन लिखवाया सीगा पहला लास्ट क्लास की शायद, वो ये सी कि सपोज 10 चेक है, पार्टीज के विच बड़ियां ट्रांजैक्शन होया, तुहानूं पता है कि चैक बाउंस के विच पैनल भी होंदे मिलते एडवोकेट्स नूं, सारे उस कंपनी के जिन्ने भी चैक बाउंस के केस हो कल्ला एडवोकेट देखेगा। मान लो वही काफ़ी एक कंपनी सी, लेट सपोज कि जियो ही कंपनी सी, जियो ने काफ़ी जनां नूं कट के चैक दिते, 10 चैक से 3 उन्होंने विचों बाउंस हो गए, डिसऑनर हो गए। ये 3 के केसेस जो है पेंडिंग कितने है? दिल्ली च लेट सपोज, और उम्मीद है देयर इज एन एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब होता है उम्मीद है, मतलब सानू लगता पे ऐसा एप्रीहेंड हो रहा है कि जेडे 7 है ना वो भी डिसऑनर होंगे, वो भी बाउंस होंगे और उन्होंने केस भी दिल्ली दे विच आउगा। कि वाकई जेडे 7 केस 7 चैक जेडे डिसऑनर होंगे उन्होंने केस दिल्ली दे विच आउगे? दिस इज अ क्वेश्चन बिफोर यू। इत्थे आपां ये नहीं देखांगे कि नेचर की है चैक का, अकाउंट पे है कि अदरवाइज एंड थ्रू अकाउंट पे। इत्थे आपां ये देखांगे कि अगर ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन हुई, एक ट्रांजैक्शन के लेट सपोज कि पार्टी ने 10 चैक इशू कर दिते, उन्होंने विचों कुछ एक चैक बाउंस हो गए, तो फ्यूचर के जिन्ने भी चैक बाउंस के केस आएंगे, जिन्नी कंप्लेंट आऊगियां वो उत्थे ही जाणगियां जिथे पहला वाले चैक बाउंस के केस ऑलरेडी चल रहे हैं पेंडिंग। इत्थे आपां नेचर ऑफ चैक नहीं देखांगे, बट है किहड़े केस च? जिथे एक ट्रांजैक्शन के विच एक तो ज़्यादा चैक इशू होए होन और उन्होंने विचों कुछ एक चैक डिसऑनर होकर पेंडिंग भी हो गए, ट्रायल भी उन्होंने चल रहा, तो जो रैसट ऑफ द बाकी जोड़े चैक्स है उन्होंने भी उम्मीद है कि वह भी बाउंस करोगे, तो उन्होंने केसिस भी उत्थे ही जाओगे जिथे ऑलरेडी पहला वाले चैक के केसिस चल रहे, ट्रायल चल रहे। वजह की है यदि आप दूसरी साइडों पर क्यों नहीं भेज दिता, आप नेचर ऑफ चैक क्यों नहीं देखी? रीजन है यदा ताकि दूसरी जगह पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो। ऑलरेडी एक ट्रांजैक्शन के विच नंबर ऑफ चैक्स इशू हुई हुई है, ठीक है। ये गल मैनू कौन कह रहा है हुण? 142 कैपिटल ए दा सबसेक्शन 2, प्लीज रीड। Section 142A subsection 2, notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 142 or stop, notwithstanding anything contained in 142 यही लिखे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 142। ये किन्नू कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग? ओवरराइड किन्नू कह रहा है करने वास्ते? आ जेड़ा सबसेक्शन है आ वाला 142 कैपिटल ए दा सबसेक्शन 2 किन्नू ओवरराइड करने को कह रहे हैं? 142 2 नू। क्यों? क्योंकि उत्थे तो जुरिस्डिक्शन बनती है, अकाउंट पे है तो पे दे ब्रांच ते अदरवाइज चेक है तो ड्रॉर के अकाउंट च। बट वो कह रहे नहीं उन्होंने नहीं मनना, ओवरराइड करता अपन नॉटविथस्टैंडिंग लगा के।
एक तो उन्होंने सीधा सीधा ही करता 142 ਨੂੰ, और दूसरा वो किन्नू कह रहे हैं और सब सेक्शन 1 ऑफ 142 कैपिटल ए आ लिखा ना, और सब सेक्शन 1 ये किहदा सब सेक्शन 1 आ जिहड़ा उपर लाले पढ़ के आए हो जिस लिखा सी ना ट्रांसफर हो जाओगे ओह उन्होंने भी आप ओवरराइड कर देना। क्यों? हाँ ये कह रहा है सब सेक्शन 2। वजह देखो बोर्ड से देखना थोड़ा ध्यान ना 142 कैपिटल ए 1 च आप की पढ़िया कर कि ये अकॉर्डिंग जिन्ने भी होर जगह ते केसेस पेंडिंग है वो इत्थे अकॉर्डिंग ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ये मैनू कह रहा है जूरिसडिक्शन दे रहा है तो ये कह रहा है ट्रांसफर कर दो किदे अकॉर्डिंग ये अकॉर्डिंग। यही गल आप पढ़ी कि मान लो नोटिस मान लो चंडीगढ़ तो दिता गया लेकिन सारी ट्रांसैक्शन दिल्ली के विच होंदी है तो दिल्ली के विच ट्रांसफर कर दो। आही कह रहे इत्थों बनती पई जूरिसडिक्शन 142 तो ये गल मैनू कह रहा ये हुण वो कह रहा इनू भी नहीं मनना प्लस इनू भी नहीं मनना आ कहता पे आह ओवरराइडिंग इनू भी ओवरराइड कर दो और इनू भी ओवरराइड कर दो। ये तो कह ही रहा सीगा इहदे अकॉर्डिंग तुसीं ट्रांसफर कर दो तो इत्थे तो जूरिसडिक्शन पहले ही तय हो गई सी। 142 सबसैक्शन 2 च अकाउंट पे चैक होंदा और अदरवाइज चैक होंदा। इत्थे बनूगी कित्थे पे दे ब्रांच और इत्थे बनूगी ड्रॉर दे ब्रांच इनू छाड़ दो। और ये गल मैनू ये भी कह रहा सीगा कि तुसी ट्रांसफर कर दो ये अकॉर्डिंग वो कह रहा इनू भी छोड़ दो। मेरी सुनो हुण वो की कहता पे इन्हां दोनों आप की करता नॉट विथ स्टैंडिंग यानी ओवर राइडिंग करता वेयर the payee or the holder in due course as the case may be has filed a complaint against the drawer of a check in the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 or the case has been transferred to the court under subsection 1 and such complaint is pending in that court। stop हुण की कह रहा है जरा ध्यान नाल समझो। देखो चैक बाउंस के केस से कंप्लेनेंट कौन होंगे पेई ठीक है। पेई ने कंप्लेंट फाइल करनी है किदे अगेंस्ट करूगा ड्रॉर दे अगेंस्ट। वही गल लिखी है वेयर द पेई और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में बी हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द ड्रॉर लिखी है कित्थे करूगा। हाँ जूरिसडिक्शन केड़ी कोर्ट 142 च लिखा ना इन द कोर्ट हैविंग जूरिसडिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 142 यानी 142 कोर्ट वाली कोर्ट च और द केस हैज बीन ट्रांसफर्ड टू दैट कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1। ये केड़ा सबसेक्शन 1 142 ए दा सबसेक्शन 1 क्योंकि उन्हें ही तो कहा तुसी ट्रांसफर कर दो जिथे ट्रांसफर करता केड़ी कोर्ट च 142 2 वाली कोर्टां च और उत्थे केस पेंडिंग हुई है आ लिखा है एंड सच कंप्लेंट इज पेंडिंग इन दैट कोर्ट। हुण की कह रही है ऑल सबसीक्वेंट कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ सेक्शन 138 अगेंस्ट द सेम ड्रॉवर आ देखो ए पी ए कौन है ड्रॉवर बी कौन है पी। इन्हें 10 चेक इशू करके दिते सी बी नूं उन्हां विचों जिहड़े 3 है वो बाउंस कर गए और बाउंस वाले पेंडिंग है कित्थे पेंडिंग है 142 दे 2 वाली कोर्ट दे विच पेंडिंग है। इत्थे तो बनी कोर्ट कि अगर अकाउंट पे है तो पे वाली ब्रांच है और अदरवाइज चेक है तो ड्रॉर वाली ब्रांच है। वो कह रहे हैं ऑल सबसीक्वेंट मतलब फ्यूचर च आने वाली कंप्लेंट अगेंस्ट किदे अगेंस्ट सेम ड्रॉर। सेम ड्रॉर कौन है ए ही है डी ई एफ जी थोड़ी है इको ही बंदा। तो सारिया बाद वाली आने वाली कंप्लेंट्स भी कित्थे जाऊगियां यही वाली कोर्ट च। देखो all subsequent complaints arising out of section 138 against the same drawer shall be filed before the same court। केड़ी कोर्ट जिथे ऑलरेडी 3 चेक बाउंस के केस पेंडिंग है और केड़ी कोर्ट च पेंडिंग है ये तय होया 142 2 दे अकॉर्डिंग। बाकी 7
भी उत्थे ही जाओगे, irrespective of whether those checks were delivered for collection or presented for payment within the territorial jurisdiction of that court. ठीक है, irrespective of that आ चेक भी कितने जाएंगे, उसी कोर्ट च जाएंगे. तो दिस इज 142 कैपिटल ए दा सबसेक्शन 2. देखो हम 3 देखो, if on the date of commencement of negotiable instrument act amendment act 2015, ये वही amendment है जितना 142 इंट्रोड्यूस किया गया. More than one prosecution filed by the same payee or holder in due course as the case may be against the same drawer of the check is pending before different courts. Upon the said fact having been brought to the notice of the court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by negotiable instrument amendment ordinance 2015, before which the first case was filed and is pending as if that subsection had been in force at all material times. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ सर ये ना होल्डर इन ड्यू कोर्स क्यों आ रहा है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? होल्डर इन ड्यू कोर्स ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੋਏ नहीं ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਇੱਕ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ B ਕੌਣ ਹੈ? ਪੇ ਹੈ. ਪੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. B ਅੱਗੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ C ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ C ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਹੋਲਡਰ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ. ਅੱਛਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. C ਨੇ D ਨੂੰ ਕਰਤਾ, D ਨੇ E ਨੂੰ ਕਰਤਾ, E ਨੇ F ਨੂੰ ਕਰਤਾ, F ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਲਿਆ. F ਕੌਣ ਹੈ? ਪੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਤੇ D E C D और E ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਹੋਲਡਰ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ. ਇਹ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ. ਹੁਣ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ. ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ 142 कैपिटल ए ਦਾ सबसेक्शन 3. ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇਗੀ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣੇਗੀ. ਬਟ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਲ ਦ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਬਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ. ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਿਹਾਰ 'ਚ. ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਰਾਦਰ ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਬਿਹਾਰ. ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਦੀ. ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ. ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈਆਂ. ਮੰਨ ਲਓ SBI ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ SBI ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ SBI ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਚੈੱਕ. ਹੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟਡ ਇਨ ਬਿਹਾਰ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ. ਇਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਨਾ. ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ SBI ਦੇ. ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ. ਪੇ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾ, ਲਗਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ. ਐਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋਣ ਤਾਂ. ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ 142(2) ਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ PNB ਹੈਬੋਵਾਲ 'ਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤਾ PNB ਡੁਗਰੀ 'ਚ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ PNB ਡੁਗਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ? PNB ਹੈਬੋਵਾਲ 'ਚ. ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਦੋਨੋਂ SBI 'ਚ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ SBI 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ SBI 'ਚ ਹੈ. ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ. ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਣੇਗੀ? ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਬੈਂਕ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਬਣੇਗੀ? ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦੇਗੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੀ ਨਾ 142 ਕੈਪੀਟਲ ਏ ਦੇ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰ 2 ਚ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੀ? 3 ਚ ਕਰੋਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3 ਦੇਖੋ, 2 ਚ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਕੰਪਲੇਂਟ, ਪੈਂਡਿੰਗ। ਇਹ ਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਕਿ 7 ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਚ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ? ਨੋ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, 20 ਚੈੱਕ ਲਗਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 3 ਚੈੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ ਤੇ 7 ਚੈੱਕ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਟੂ ਡੂ? ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਰੀਡ ਕਰੋ ਨਾ। Subsection 142 capital A subsection 3. If on the date of the commencement of the Negotiable Instrument Amendment Act 2015 more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course as the case may be. Full stop. Against the same drawer of the check is pending before different courts. ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣੂਗੀ? ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਤਾ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ। ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਬਣੂਗੀ? ਔਰ ਚੈੱਕ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟ ਪੇ ਚੈੱਕ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ? ਜਿੱਥੇ ਪੇ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈਆਂ? ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰਵਾਇਆ? ਬਿਹਾਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ। ਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ। ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ? ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਕੀ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ 10 ਚੈੱਕ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਾਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ 10 ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਪਈ, ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 9 ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ ਸੱਚ, ਕੇਸ ਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 142(2) ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ, 142 ਕੈਪੀਟਲ A 2 'ਚ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ। कलर चेंज कर ला। हाँ देखो, एक अकाउंट पे चेक है, एक कोई चेक है। पहली गल 9-10 चेक नहीं है। हाँ, मैं एक कोई बनाया। सारी ट्रांजैक्शन इस चेक की कितने हो रही हैं? दिल्ली च। यदि यह बंदा दिल्ली दे विच SBI दे विच दा अकाउंट है, उत्थे डिपॉजिट करवांदा ते कितने दी जूरिसडिक्शन बनेगी? दिल्ली दी। याद रखना सारी ट्रांजैक्शन भी दिल्ली दी होई हुई, लेकिन इन्ने दिल्ली दे विच ना जमा करा के इहदा एक अकाउंट बिहार दे विच भी सीगा, इन्ने ही डिपॉजिटेड इन द बिहार, इन्ने बिहार दे विच जमा करवाता। सारी ट्रांजैक्शन याद रखना दिल्ली दे विच हुई हैं, यानी नोटिस भी दिल्ली तो दिता, डिसऑनर भी दिल्ली तो हो गया, लेकिन इस बंदे ने डिपॉजिट जो है बिहार च कराया। मल्टीपल अकाउंट्स है, तो एक बिहार च एक दिल्ली च, चेक इक्को ही है। जूरिसडिक्शन कितने बनेगी? हुन ए क्वेश्चन है, समझ आया? हुन ठीक है।
ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਜੂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਬਸੈਕਸ਼ਨ 3, ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਮਲਟੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਆਰ देयर, एक दिल्ली च है और एक बिहार च है, डिफरेंट कोर्ट्स है, एक दिल्ली वाली कोर्ट है और एक बिहार वाली कोर्ट है, ऑल आर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। बिहार कोर्ट और दिल्ली कोर्ट दोनों की जुरिसडिक्शन ये अकॉर्डिंग बनती पई, क्योंकि ट्रांसैक्शन दिल्ली च हुई तो दिल्ली की भी जुरिसडिक्शन बन रही है। चैक डिपॉजिट इन्हें करवाया बिहार च, बिहार की भी जुरिसडिक्शन बन रही। सारी कोर्टां की जुरिसडिक्शन 142(2) के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बनती पई है। देन वैन यू इनफॉर्म द कोर्ट, यानी कि ड्रॉर जिहड़ा इनफॉर्म द कोर्ट दैट देयर आर मैनी अदर केसेस बिटवीन सेम पार्टीज, all cases would go to court where first case was filed। मल्टीपल अकाउंट्स है, कुछ एक मान लो हुण तुहाडी गल ते आंदे 10 चैक, 5 दिल्ली दे विच होए, 5 बिहार दे विच होए। पार्टीज कौन है? ए एंड बी। 5 चैक दिल्ली दे विच ही लगाए गए और दिल्ली तो डिसऑनर हो गए। 5 चैक बिहार तो ही लगाए गए तो बिहार दे विच डिसऑनर हो गए। पार्टीज कौन है? ए एंड बी सेम। लेकिन जिहड़ा बी परसन है ये मल्टीपल अकाउंट्स है, एक दिल्ली च और एक बिहार च। हुण इन्हें की किया डिफरेंट कोर्ट्स की, हुण ये मान लो इत्थे डिसऑनर हो गया दिल्ली च, तो 142(2) के अकॉर्डिंग दिल्ली कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनेगी और 142(2) के अकॉर्डिंग कि ये 5 चैक की बिहार कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनेगी। लेकिन इन्हें की कर दिता, अलग अलग लगाते। मान लो आ जिहड़े 5 चैक सीगे ये बिहार च लगाते, आ जिहड़े 5 चैक सीगे आ दिल्ली च लगाते। सपोज ता जिहड़ा ड्रॉअर है वो इनफॉर्म करेगा, दसेगा कोर्ट नूं दैट देयर आर मैनी अदर केसेस बिटवीन द सेम पार्टीज। ये अदर केसेस है सारे, ते सारे केसेस कित्थे चले जाएंगे? विल गो टू द कोर्ट वेयर द फर्स्ट केस वाज फाइल्ड। पहला केस मान लो दिल्ली दे विच फाइल होया सी ते बाकी आ वाले 5 भी है जिहड़े वो दिल्ली दे विच ट्रांसफर कर दिते जाणगे। आ कह रहा हुण तुहाडा सबसैक्शन 3। एक बार हम तुसी रीड करो। Subsection 3. If on the date of the commencement of the Negotiable Instruments Act 2015, more than one prosecution filed by the same payee or holder in due course, as the case may be, against the same drawer of check is pending before different courts, upon the said fact having been brought to the notice of the court, such court shall transfer the case to the court having jurisdiction under subsection 2 of section 142 as amended by the Negotiable Instrument Ordinance 2015, before which the first case was filed and is pending, as if the subsection had been in force at all material time। ठीक है, फर्ज करो हुण मैं क्वेश्चन एक सिचुएशन लिखी है बोर्ड पे, 3 चैक्स है। ए दा एक अकाउंट है दिल्ली च, ए दा एक अकाउंट है आगरा च, ए दा एक अकाउंट है जयपुर च। 3 चैक है। ए ने एक चैक लगाता दिल्ली च, दिल्ली तो बाउंस हो गया, 142(2) के अकॉर्डिंग दिल्ली की जुरिसडिक्शन बन गई, पेई है। एक चैक उन्हें आगरा दे विच लगाता, बाउंस हो गया, 142(2) के अकॉर्डिंग आगरा की जुरिसडिक्शन बन गई, पेई है। एक चैक उन्हें जयपुर च लगाता, बाउंस हो गया, 142(2) के अकॉर्डिंग जयपुर की जुरिसडिक्शन बन गई क्योंकि पेई। ऐ तो फिर ए नूं 3-3 जगह ते जिहड़ा है जाना पएगा।
पे जिहड़ा है उन्होंने कंप्लेंट करेगा तीन तीन जगह के उत्ते, पे दे वास्ते भी मुश्किल है और ड्रॉर दे वास्ते भी मुश्किल है। द मोमेंट पे या ड्रॉर विल इनफॉर्म द कोर्ट, तीनों कोर्टां नूं दसूगे, जयपुर वाली कोर्ट नूं भी, आगरा वाली कोर्ट नूं भी, दिल्ली वाली कोर्ट नूं भी, कि ਇਹਦਾ जयपुर वाली कोर्ट नूं मान लो ये दसूगे ਇਹਦਾ एक केस आगरा दे विच भी पेंडिंग है, एक केस दिल्ली दे विच भी पेंडिंग है। आगरा वाली कोर्ट नूं दसूगे तो एक केस जयपुर च भी पेंडिंग है, एक केस दिल्ली च भी पेंडिंग है। दिल्ली वाली कोर्ट नूं दसूगे एक केस ਇਹਦਾ आगरा च भी पेंडिंग है, एक केस जयपुर च भी पेंडिंग है। ते तीनों कोर्ट की करोगियां, चैक करोगियां फस्ट केस, फस्ट चैक का केस किहड़ी कोर्ट दे विच लगाया गया, दिल्ली दे विच लगाया गया, ते आ दो केसेस भी दिल्ली दे विच ट्रांसफर कर दिते जाए। आ कहना चाह रहा सबसेक्शन 3। हुण मैं पढ़ना, जरा ध्यान नाल सुनना। If on the date of commencement of Negotiable Instrument Act 2015, ए Amendment Act 2015 का की मतलब है 142, जिस दिन वो आया, more than one prosecution filed by the same payee, एक तो ज़्यादा प्रोसिक्यूशन फाइल की पेई ने, कित्थे कित्थे, आगरा च भी की, दिल्ली च भी की, जयपुर च भी की, और होल्डर इन ड्यू कोर्स एज द केस में भी अगेंस्ट द सेम ड्रॉर, किहदे अगेंस्ट, ड्रॉर दे, ड्रॉर कौन है, ए, ऑफ द चैक्स इज पेंडिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स। हाँ हम तीन अलग अलग कोर्ट च पेंडिंग है, तुसीं देख ही सकते हो बोर्ड ते भी, एक जयपुर च पेंडिंग है, एक दिल्ली च पेंडिंग है, एक आगरा च पेंडिंग है। तीन प्रोसिक्यूशन, तीन केस चल रहे हैं, किन्ने फाइल किते, पे ने फाइल किते, किदे अगेंस्ट फाइल किते, इक्को ही बंदे दे अगेंस्ट, ए दे अगेंस्ट। अपॉन द सैड फैक्ट हैविंग बीन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द कोर्ट, नोटिस ऑफ द कोर्ट मीन तुसी कोर्ट नूं इनफॉर्म करोगे, चाहे पे भी कर सकता है, चाहे ड्रॉर भी कर सकता है, किन्नू, किहड़ी कोर्ट नूं, तीनों कोर्टां नूं की इनफॉर्म करना है कि इहदे ऑलरेडी दूसरी कोर्टां दे विच भी केसेस पेंडिंग है, तो फिर तीनों कोर्ट्स पहला तो चेक करोगे कि फर्स्ट केस कितने फाइल किया गया। ठीक है, हुण देखना, सच कोर्ट शैल ट्रांसफर द केस टू द कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन अंडर सबसेक्शन 2 सेक्शन 142 एज अमेंडेड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2015 बिफोर विच द फर्स्ट केस वॉज फाइल्ड एंड इज पेंडिंग। फर्स्ट केस कितने फाइल और पेंडिंग है, दिल्ली दे विच, ते आगरा वाला केस भी कितने भेज दिता जाऊगा, जयपुर वाला केस भी कितने भेज दिता जाऊगा, दिल्ली च। आ लिखा ना बाद दे विच कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन अंडर 142 सबसेक्शन 2, ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है कि दिल्ली के कोल भी और आगरा के कोल भी और जयपुर के कोल भी कितों जुरिसडिक्शन आ रही है, 142 तो ही तो आ रही है, ये वो गल कह रही है। तो फिर ट्रांसफर कितने कर दी जाऊगी प्रोसीडिंग्स, आगरा और जयपुर की भी दिल्ली वाली कोर्ट च, क्योंकि दिल्ली कोर्ट के ही पहली बार जो फस्ट केस है वो इंस्टीट्यूट हुए। लेकिन कंडीशन की है, सेम पार्टीज होनी चाहिए, ए और बी, पेई ने इको ही ड्रॉर के अगेंस्ट फाइल किया होना चाहिए केस, यानी इतने ए है तो ए के अगेंस्ट ही किया होना चाहिए केस। ठीक है, बिफोर विच द फर्स्ट केस वॉज फाइल्ड एंड इज पेंडिंग एज इफ दैट सबसेक्शन हैड बीन इन फोर्स एट ऑल मटीरियल टाइम्स। केड़ा सैक्शन, 142, क्योंकि उत्थे तो जुरिसडिक्शन बनती, मान के चलो इत्थे भी वही गल है कि वह हमेशा तो सीगा, बेशक वो 2015 तो बाद आया, लेकिन ए सैक्शन सानू ऐसा कह रहा है, हिदायत दे रहा है कि कंसीडर इस तरह इनू एवें करो कि 2015 तो पहला भी एग्जिस्ट करता सी, क्योंकि उत्थे तो जुरिसडिक्शन बनेगी। हुण असीं भास्करन वाले या हरमन इलैक्ट्रॉनिक्स वाली जजमेंट थोड़ी फॉलो कर रहे हैं, फिर 142(2) वाली कर रहे हैं। ऑलराइट, तो ये है तुहाडा 142 सबसेक्शन 3। डिफरेंस की है 142 सबसेक्शन 2 और 3 च, ये क्वेश्चन आता होंगे अक्सर एग्जाम से, डिफरेंट बिटवीन 142 कैपिटल ए सबसेक्शन 2, वही 7 केस भी 3 जिथे पेंडिंग है कोर्ट च उत्थे ही जाओगे ऑन द वन साइड, एंड 142 कैपिटल ए क्लॉज 3, आ 3 वाले जेडे दसे मैं, आगरा, दिल्ली और जयपुर, ए दोनों च डिफरेंस की है। पहली गल इत्थे याद रखना, ऑल सबसीक्वेंट कंप्लेंट्स लिखे शैल बी फाइल्ड, शैल बी फाइल्ड मतलब फ्यूचर दे विच वो फाइल कीतियां जाणगियां, वो 7 वालियां 7 चैक्स, और इहदे विच ऑलरेडी पेंडिंग है, पेंडिंग बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स, एंड ऑल कोर्ट्स हैव जुरिसडिक्शन
अंडर सैक्शन 142 सबसैक्शन 2 ऑलरेडी पेंडिंग मतलब है हल्ले भी चल रही है, प्रेजेंट है ये, हल्ले भी पेंडिंग ने, जयपुर च भी पेंडिंग है, आगरा च भी पेंडिंग है, दिल्ली च भी पेंडिंग है। आ फर्क है बेसिकली दोनों च। Different courts and all courts have jurisdiction under 142 subsection 2 ठीक है, ये फर्क है दोनों च। हुण तुसी मैनूं एक्सप्लेन करो की फर्क है दोनों च। ये कह रहे हैं ऑल सबसीक्वेंट कंप्लेंट्स, 3 तो फाइल हो ही गई जी, 7 है वो हले होनी है, वो कितने आण गया, वो 3 वाली कोर्ट च, तो ये ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी कि 10 के 10 केस ऑलरेडी पेंडिंग है, चल रहे हैं अलग अलग जगहों पे। लिखा ना बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स, लिखा ना बिफोर डिफरेंट कोर्ट्स, तो फर्ज किया कि 10 केस है, 10 चैक ने, तो 10 अलग अलग जगह पे पेंडिंग है, एक दिल्ली च, एक आगरा च, एक जयपुर च, एक कोटा च, एक मान लो तुसी उत्थे उज्जैन च, एक मुंबई च, एक पुणे च, 10 के 10 केस अलग अलग पेंडिंग है, हल्ले भी चल रही है, प्रेजेंट है वो। तो फर्स्ट केस की है 10 के 10 केस पेंडिंग नहीं है, कुछ ही पेंडिंग है, और ये कितने कितने पेंडिंग है, ऑल हैविंग जुरिसडिक्शन, वो सारी कोर्टां च जिथे 142 के अंडर जुरिसडिक्शन तय होती है। समझ आया? एक होर गल किते साइड ते लिख लो, जदों पे वो लगांदा है, नहीं वैसे पहला समझ लो, अपनी वर्डिंग च लिख लेना, जदों पे चैक लगांदा बैंक दे विच, ते बैंक ने मान लो डिसऑनर करता, एक किवें इन्फॉर्मेशन पे कोल आएगी, मैसेज भी आता है उन्होंने, एक सैपरेटली चिट भी आते, उन्होंने कहते बैंक मैमो। हाँ, बैंक मैमो दे विच की हुंदा है, ग्राउंड्स ऑफ डिसऑनर, किहड़े किहड़े रीजन सीगे डिसऑनर दे, इनसफिशेंट बैंक बैलेंस सीगा, कोई होर वजह सी कि जिहड़ी तुसी अमाउंट लिख रहे हो बैंक दे विच अमाउंट ते घट, तुसी लिखता 10,000 का चैक, तो बैंक दे विच पिया ही 5,000 है, इनसफिशेंट बैंक बैलेंस, ठीक है, यह गल, तो ये बैंक मैमो तो आती है। अच्छा, ठीक, ओके, हाँ एक और चीज़, चैक डिपॉजिट आप करवाना कितनी देर से करवाना होंगे, 3 महीने का टाइम है, जो 3 महीने लंघ गए फिर एक्सपायर्ड हो गया चैक, ठीक है, उन्होंने कहने आप चैक की हो गया स्टेल हो गया, स्टेल मतलब बस, हाँ जी, स्टेल्ड चपाती उमें स्टेल्ड चैक, कदों जदों असी बियॉन्ड द टाइम लिमिट डिपॉजिट करवाना, तो चैक की हो गया स्टेल हो गया या एक्सपायर हो गया, स्टेल और एक्सपायर्ड, राइट, हाँ वो पीछे भी लगा सकते हैं, या अलग तो स्लिप जो स्टैपल करके भी लगा सकते हैं, मैं वो भी देखी हुई है, या सैपरेट जो डॉकूमेंट है इन्ना वड्डा पेज ही उहदे ते भी लगा सकते हैं। हाँ हाँ वो एग्जिबिट लगता है, हाँ हाँ ओरिजिनल होंदा। कितना टाइम लिमिट है तुसी दसिया 3 महीने, लेकिन तुसी 138 का प्रोवाइजो ए देखो, जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी है चेक बाउंस की, देखो प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, ये उत्थे ही आप गल आ गई कि मेयर चेक बाउंस का ऑफेंस बनता है, आंसर करो, मेयर चेक बाउंस, मान लो बैंक ने तुहानू चेक बाउंस का नोटिस भेज दिता, मीमो भेज दिता, मैमो इन्हों कहते मीमो नहीं मैमो, मीमो उत्थे इंटरव्यू यूज करोगे ना पॉइंट आउट कर दोगे मैमो, इत्थे भी मीमो ही बोलते, इट्स मैमो,
उन्होंने तुहानू भेजता की ऑफेंस बन गया 138 ਦੇ अंडर नो कदों बनता जो प्रोवाइजो ए बी सी पूरे होंगे ठीक है ऑलरेडी मैं लिखवा चुका मैं क्लास रिकॉर्डिंग से लगा रहे बेटा क्यों एंड देन यू आर लाफिंग नहीं सर दूसरे लेक्चर पूरे कर रहा था रजिस्ट्रेशन दे के पॉक्सो पॉक्सो ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ पॉक्सो का टेस्ट लेना है ना ਐਮਸੀਕਿਊ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ चलो एमसीक्यू दे देना देखो पहली रिक्वायरमेंट की है कि जो ऑफेंस बनेगा अनलेस द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर इतने तो 6 महीने लिखा हुआ है तो तुम कह रहे हो 3 महीने बताओ किसको मानूं आपको मानूं कि बेयर एक्ट को मानूं तो फिर तुसी क्यों क्या 3 महीने वैसे 3 महीने टाइम नहीं और देखो 6 मंथ्स के ऊपर स्टार भी लिखा है जी अच्छा ये हो गया ना प्रेजेंटेड का मतलब की है पहले मैंने ये दसो लिखा है ना द चेक हैज बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक बैंक की जारी जो प्रेजेंट करते हो प्रेजेंटेड सिंपल मतलब समझो गिवन डिपॉजिट जल्दी डिपॉजिट करते हैं ठीक है हाँ आप कर रहे हैं प्रोवाइजो ए ऑफ 138 ठीक टाइम कितना गिवन है 6 मंथ्स बट अगर तुम ये फुटनोट च देखो तो की लिखा है द पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 मंथ्स सर केड़ा है फुटनोट मेरे ते स्टार बनया होया नहीं 6 मंथ्स ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਫੁਟਨੋਟ ਬਣੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਟਾਰ ਫਿਰ मिल गया मेरे ना फुटनोट इधर 6-7 है उरे दिखाओ आ की है आ स्टार है ते आ स्टार प्लीज थोड़ा अटेंटिव रहा करो आ सर्कुलर का नाम याद रखना प्लीज ये लिखा ना थले द पीरियड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 6 मंथ्स टू 3 मंथ्स बाय नोटिफिकेशन नंबर RBI 2011 to 12/251 DBOD AML .BC .number 47/19/1 2006 to 2011 और 12 और यदि डेट कितनी है 4 नवंबर 2012 नाल ही लिखी हुई विद इफेक्ट फ्रॉम 4 नवंबर 2012 टाइम कितना करता है उन्होंने 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच इट इज ड्रॉन तो मान लो अगर मैं 1 जनवरी 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 3 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਕਦੋਂ ਬਣਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਚ 1 ਮਾਰਚ अच्छा पूरा ऐदो बंदे हैं 3 मंथ्स पूरे 31 मार्च ठीक है और की लिखा विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी विच एवर इज अर्लियर वैलिडिटी का पीरियड मतलब चेक वैलिड कदों तक रहा ये तो वो टाइम है जो मैं प्रेजेंट करना है उत्थे 6 मंथ्स लिखे लेकिन नीचे कितना लिखा 3 मंथ्स और अगर इतने मैं 6 मंथ्स कैलकुलेट करा तो कितना बनेगा
30 जून आही बनया, ये तो प्रेजेंट है। और पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, वैलिडिटी का पीरियड भी याद रखना कितना होता है 3 मंथ्स। दोनों के विचों प्रिवेल किहड़ा करेगा? एक तो लिखा है कि 6 महीने के हले भूल जाओ सर्कुलर वाली गल जो नीचे तो आ लिखा है ना, RBI का सर्कुलर वगैरह, ये अकॉर्डिंग तो 6 महीने 3 मंथ्स करता रिड्यूस, इनू हले भूल जाओ थोड़ी देर लिए। मान के चलो कि मैं 1 जनवरी 2025 में तुहानू चैक इशू किया और वो मैं 6 महीने के प्रेजेंट करना। 6 महीने कदों बनते? 30 जून 2025 में। इस तो पहला या इस दिन भी मैं कर सकता क्योंकि मेरे को पूरा डे होंगे। और पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब है कदों तक वैलिड रहेगा, कदों तक मान्य सही रहेगा, वो भी कितना? 3 मंथ्स। इन्होंने दोनों चो प्रिवेल केड़ा करेगा? विच ऑफ दीज विल प्रिवेल? विच एवर इज अर्लीयर, जेड़ा पहला एक तो है टाइम 30 जून 2025 का यानी 6 महीने, एक है टाइम 3 महीने का, इत्थे हो गया तुहाडा 31 मार्च 2025। तो ए डेट पहला आएगी कि ए डेट पहला आएगी? नैचुरली ए वाली डेट पहला आएगी, तो अर्लीयर तो ए होया, ए प्रिवेल करेगा। याद रखना ये चीज। एक तुहानू MCQ दे विच मान लो क्वेश्चन आता है इस तरह का, चेक should be presented, number A, within 6 months from date of issue, और खत्म हो गया, टाइम तो ओवर हो गया वैसे तो कदों का, बट चलो एक चीज़ मैं तुहानू दस देना। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लगना, हम थोड़ी 3-4 क्लासेस के विच इन्ना ये हो जाए, ज़्यादा है नहीं। मैं आर्बिट्रेशन कंसल्टेशन तो ले रहा है, बहुत होती पढ़ो, फिर दिल्ली जब ईयर होना है तो फिर आर्बिट्रेशन पढ़ो। प्री तो सब इंपॉर्टेंट है। विद इन डेट ऑफ इशू और पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, नहीं सॉरी गलत हो गया, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और एनी टाइम विच एवर इज अर्लियर, और एनी टाइम विच एवर इज अर्लियर, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। बी है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम वैलिडिटी, sorry from date of issue, or any time whichever is earlier। C है only B और D है none। दोनों के विचों केड़ा तुसी मार्क करोगे? प्लीज आंसर। वो कह रहे चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और एनी टाइम whichever is earlier, within 3 months from the date of issue or any time whichever is earlier। only B मतलब A वाला और D मतलब none। आंसर की है तुहाडा? आंसर सही दिता, ए ही करांगे। लेकिन क्यों ए करांगे? RBI के सर्कुलर दे विच तां लिखिया है कि 3 मंथ्स होना चाहिए। चलो वो तो दोनों के कॉमन है, एनी टाइम विच एवर इज अर्लियर, और इत्थे भी लिखा एनी टाइम विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सवाल आता है इत्थे मैं लिखता विद इन 6 मंथ्स और इत्थे मैं लिखता विद इन 3 मंथ्स। ए लिखा है ऊपर मेन पैराग्राफ च प्रोवाइजो च और ए लिखा है नीचे फुटनोट च सर्कुलर च। आप किसको मानोगे? आंसर आपका ठीक है, यही होगा, 6 मंथ्स ही होगा। वाई? हाँ ठीक है, पर ये तो मैक्सिमम टाइम है कि 6 मंथ्स होना चाहिए, लेकिन नीचे फुट नोट उन्होंने मैक्सिमम टाइम कितना रिड्यूस टू करता 3 मंथ्स। तो फिर तुम उन्हें थे कहोगे कि 3 मंथ्स तो पहला कभी भी करवा सकता है।
ਇਹਨੂੰ याद रखना प्लीज़, ਇਹਨੂੰ कॉपी च लिख ले, लिखो 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 फटाफट, बी क्विक। यू शुड राइट ईच एंड एवरी वर्ड विच द टीचर इज टेलिंग यू, क्योंकि इत्थे तुहाडी है ना जी वो पंजाबी च की कहते घरंटू फसना, इत्थे ही होना वो। यस, जब तक क्लीयर नहीं है गल तो बच्चे अगे वध ही नहीं सकते। सवाल है, चेक शुड बी प्रेजेंटेड विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और एनी टाइम विच एवर इज अर्लियर। बेटे लिखिया करो नाल दे नाल, तुहाडा हैंड हमेशा रनिंग स्पीड च होवे। असी कॉलेजेस दे विच टीचर कुछ भी बोलते सीगे ना, असी वो तक लिखते सी। फर्ज किया तो मैं डिक्टेशन नहीं देनी फिर। ये क्वेश्चन है कि चेक शुड बी प्रेजेंटेड और ऑप्शन की है विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और विच एवर पीरियड इज अर्लियर। बट यदि क्वेश्चन ये होवे चेक शुड बी प्रेजेंटेड और ऑप्शन लिखा है ए विद इन 6 months, बी विद इन 3 months, सी विद इन 9 months और डी विद इन 12 months। आप बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। ऊपर तो तुसी कहता 6 months है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू और विच एवर इज अर्लियर। अब क्या होगा इसका आंसर विद इन 3 months। अब आपने नहीं बोला विद इन 6 months और यही इसका आंसर ठीक भी है। दिस इज द करेक्ट आंसर। ये सारा गेम हैगा इस वर्ड का, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, प्रोवाइजो ए दे 2 पार्ट्स है, केड़े केड़े 6 months फ्रॉम डेट ऑफ चेक, आही लिखे ऑन विच इट इज ड्रॉन, और दूसरा पार्ट की है विद इन द पीरियड ऑफ, बोलो विद इन द पीरियड ऑफ वैलिडिटी। ये वैलिडिटी कितनी होती है 3 months। तो आप चेक कब डिपॉजिट कर सकते हो, या तो 6 महीने में कर दो या तो 3 महीने के अंदर कर दो, दोनों में से लेकिन प्रिवेल कौन करेगा, विच एवर इज अर्लियर। जॉन सा पहले आ गया वो प्रिवेल करेगा। तो मतलब चेक तुसी विद इन 6 months भी प्रेजेंट कर सकते हो या विद इन पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी भी प्रेजेंट कर सकते हो। तो 6 महीने की है फिर इट इज द मैक्सिमम टाइम और यू कैन से इट इज द हाईएस्ट टाइम। कि मान लो अगर 3 महीने निकल भी गए फिर 6 महीने के विच ही करोगे, हाल तक वैलिड तक टाइम निकल गया, क्योंकि वैलिडिटी कितनी है 3 महीना। हुण तुसी शिफ्ट हो गए हो आ वाले मैक्सिमम टाइम दी रेंज दे विच आ गए हो, वो कितनी होंदी है 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ चेक। ठीक है, इस तो बाद नहीं जा सकते। 6 महीना 1 दिन बाद भी नहीं तुसी चेक डिपॉजिट कर सकते। हाँ, उस तो बाद अगर 3 महीने निकल गए तो फिर मैक्सिमम ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ टाइम लिमिट कितनी है 6 months। टोटल 6 महीने देखो वो सिंपल यहाँ पे ये कह रहे हैं यहाँ पे 6 महीने डिपॉजिट करा दो या फिर उस अवधि के विच डिपॉजिट कराओ, उस पीरियड के विच डिपॉजिट कराओ जब तक वो चेक वैलिड है।
ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਚ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ 6 ਮੰਥ ਫਰਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਹੁਣ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ? ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਰਬੀਆਈ 2011-12। ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਸਮਝੋ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਕੂਲਰ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਸਰਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਆ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵਿਦ ਇਨ 6 ਮੰਥਸ from the date on which it is drawn or within the periods of its validity whichever is earlier। ਇਹ ਪੂਰਾ whichever is earlier ਤੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ। ਖਾਲੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ this period has been reduced from 6 months to 3 months। ਇਹ 6 months to 3 months ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਦੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪਾਇਆ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਬਟ ਆ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਪੂਰਾ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਔਨ ਵਿਚ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਰਾਨ ਔਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਫ ਇਟਸ ਵੈਲਿਡਿਟੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? 6 ਮੰਥਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ? 6 ਮਹੀਨੇ। 3 ਮੰਥਸ, ਯੈਸ 3 ਮੰਥਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 3। ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਚੈੱਕ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਫਰੋਮ ਦ ਡੇਟ ਆਫ ਇਸ਼ੂ। ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਢਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚੈੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ, ਡਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਲਿਡ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੈੱਕ? ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਡੇਟ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਔਰ ਵਿਚਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਰਲੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਸੀਗੀ? 6 ਮਹੀਨੇ, ਹੁਣ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਕਿੰਨੀ ਕਰਤੀ ਹੈ? 3 ਮਹੀਨੇ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ। 4:10 ਵੀ ਹੋ ਗਏ, टाइम भी हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्लास में कल आपको मैं एक बार फिर बता दूंगा ये 6 मंथ्स और 3 मंथ्स वाला इशू। ठीक है, इस तो बाद तो की रह गया होर, हाँ पोस्ट समनिंग, प्री समनिंग, टाइप्स ऑफ डिसऑनर रह गया, बस तो कंप्लीट हो जाना। सर एक बार ये दोबारा एक रोज प्रोविजनरी नोट कराया था इंटरप्रिटेशन में सेक्शन बोल से लेकर हो गया, होल्डर एंड ड्यू कोर्स भी हो गया, होल्डर भी हो गया, हाँ पेमेंट एंड ड्यू कोर्स नहीं ये बाकी सब खुद पढ़ने वाली चीज़ें। एंडोर्समेंट भी हो गया, हाँ सेक्शन 14, 15 एंड 16 जी। 13 का एक मिनट रुक जाओ मैं निकाल रहा हूँ। हाँ 4, 5, 6 जी 7 नहीं 7 नहीं कराया, 8, 9 हो गया, 13, 14, 15 हो गया। जी ठीक है,
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ 138 ਤੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸੀ। हाँ जी 138 हाँ। की ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੜਨ ਦਾ ਹੀ 138 ਹੈ। 138 तो ठीक है फिर Resilience Law Academy.